I have closed over $5 million in sales in the last 6 years. My clients are so happy with me that they are not resisting any moment to hire me again and again. This is Osama Ashraf. I have been doing sales for the last 6 years. My goal is to make billions of dollars for my clients, and obviously with them I'll be making hundreds of millions of dollars altogether. This video has three main points which actually made me strategize myself, my clients' agendas in a way that we are doing shitload of sales. Honestly, these 3 points, if you get the idea how you have to adopt them, you can never be failed what you do. First thing, value creation. So how exactly we can create so much value for a person, for a buyer, which cannot resist what he is buying? Because obviously at the end of the day, if your offer is too too good to be true, that they have to at least look at it, and if it actually provides the value, भाई अगर वाकई में उनको समझ में आ गई ना कि वो क्या लेने वाले हैं, तो they cannot resist. करना क्या है, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा. 1994 में जब बेजोस ने Amazon को स्टार्ट किया, राइट, and he was actually looking at the numbers on the internet, that internet is being grown, like भाई हर डेली के इतने सारे लोग इंटरनेट पे आ रहे हैं, and he knows कि एट दैट पॉइंट कि भाई कैसा कुछ बनाया जाए जहाँ से लोगों को हम कुछ इंटरनेट पे बेच सकें. एंड द वन थिंग व्हिच केम टू इन हिज माइंड, लाइक ऑब्वियसली ये सबका, हर बंदा बायस्ड होता है, हर बंदे का अपना एक्सपोजर होता है. तो उसने क्या देखा कि बुक्स की मार्केट जो है ना वो इतनी ज़बरदस्त है. इफ समबडी इज राइटिंग बुक इन यूएसए, समबडी इज राइटिंग बुक इन यूके और वेयरएवर ही इज, राइट, एंड अगर मैं उसको चैनलाइज कर दूँ एक काइंड ऑफ इंटरनेट के ऊपर, एंड पीपल कैन बाय द बुक्स फ्रॉम देयर, those books can be shipped, those books can be from any part of the world, तो लोगों को उस चीज़ का बहुत फ़ायदा होगा. एंड ऑब्वियसली 1994 में बुक रीडिंग वॉज वेरी कॉमन, स्पेशली द हार्ड बुक्स, राइट, जो कि आज नहीं है, बट उस टाइम को अगर हम देखें, इट वॉज अ क्रेजी आइडिया. एंड उसने इस पूरे आइडिया के अगेंस्ट सिर्फ 5 सालों में, पहले 5 सालों में 1.64 बिलियन का रेवेन्यू किया अमेजोन ने. कैन यू इमेजिन क्या फ़र्क था उसकी स्ट्रैटेजी में और आज हम जो स्ट्रैटेजीज क्रिएट करते हैं उसमें. ही एक्चुअली पुट अ लॉट ऑफ वैल्यू टू द प्रॉब्लम, कि उसका सोल्यूशन कितना अच्छे से उसने सामने रख दिया लोगों के. दैट्स व्हाट वी हैव टू डू. वी हैव टू फाइंड द परफेक्ट प्रॉब्लम जिसको हम ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हैं, बट हम उसको स्टेट नहीं कर पा रहे उस तरह से जिस तरह से हमें करना चाहिए. इंटरनेट पे कुछ भी बेचा जा सकता था. He could have done anything, but he has chosen like problem कि यार जिस पे उसको पता चला कि यार अगर ये सॉल्व हो गई ना तो people will be like going crazy for my stuff. ये तो करना है. वैल्यू इतनी ज़्यादा ऐड कर दो कि they cannot resist it. They have to buy it. Obviously उनकी ज़रूरत बन जाए वो. They cannot go ahead by skipping your ad or whatever it is. Second thing, repeated sales. Business is in some sort of position where you are doing something, at end of the every month you have to go for the new leads, you have to go for the new clients, then definitely you are never gonna pass this circle. Because let's say, picture this, you have a business, in 5 years you made maybe 5 million in sales or maybe 10 million in sales, right? But after the 5 years you have to do it again from scratch, which means you don't have the leads coming back to you. You don't have the people who are liking you, who are buying your services and again, because it is not a need for them now. You have helped the problem, it is done and dusted. You cannot go back and you cannot help them again because that's not needed now. कुछ ऐसा करना है जहाँ पर आप उनको बार बार हेल्प आउट कर सको, and they will be needing you again and again. इस पूरे प्रोसेस के अंदर I would say उन चीज़ों पे काम करो जहाँ पर कस्टमर आपको लगता है ये बार बार मेरे पास चलकर आ सकता है, देयर आर चांसेस कि मैं उसको रिपीटेड सेल्स करूँगा. एलेक्स होर्मुज़ी कहता है यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द फ्री एंड यू कैन स्केल इट टू द $1 million, विच मीन्स कि अगर आपके पास $0 बेचने, अगर कुछ ऐसी वैल्यू है जो आप $0 में दे सकते हो, बट वो एक्चुअली वर्थ करता है मे बी 100,000 व्हाटएवर द अमाउंट इज, एंड आपने उसको किसी को 0 में दिया और उसने आपका उस जीरो की प्राइस पे आप जो दे रहे हो वो अगले बंदे को बताने के लिए काफ़ी था कि यू आर वर्थ समथिंग. इसका मतलब ये है कि अगर आपका इंप्रेशन अगले बंदे तक चला जाता है, वो भी फ्री में, राइट, जिसका वो शख्स ऑलरेडी किसी ना किसी को पे कर रहा होगा या कर सकता है, लेकिन अब लोग उसके बारे में चार्ज कर रहे हैं, which means कि अब आपने उसको अपनी वर्थ बता दी है. Now the next step is you can maybe sell him something of value of $500 or $1,000 or $5,000. आपने वो बेचा, this person is going to need this $10,000 too. This person is going to need $20,000, $50,000 worth of this thing too. Maybe $100,000, maybe $1 million, product or service.
If you know your customer well, if you know your ICP and their problems and whatever they are struggling with, you can craft your offers, upside the hill and see how exactly they will be paying you at each stage. This is how you do the maximum amount of sales and the maximum amount of money you make from your existing customer base. But you have to make sure तुम्हारा कस्टमर तुमसे राजी, तुमसे खुश और तुम्हारी सर्विसेज से अमेजिंग फील करेगा भाई, उसको किसी और का नाम सुनने का दिल भी ना करे जब ये चीज तुम्हारी उस सर्विस उस कैटेगरी में बात हो, वो सिर्फ आप ही के बारे में बात करे. दिस इज हाउ स्ट्रॉन्ग योर ब्रांड शुड बी, दिस इज हाउ योर स्ट्रॉन्ग योर वैल्यूज शुड बी. एंड नाउ ऑब्वियसली इन सारी चीजों का होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है अगर हम ये थर्ड चीज को भूल जाएं. और मैं बताता चलूँ ये थर्ड चीज जिसने समझ ली ना, उसके बाद आपको ये सोचने करने की जरूरत ही नहीं है कि मैं क्या करूंगा, मेरी प्रोडक्ट क्या होगी. बिकॉज देयर इज अ पर्सन, एक चैलेंज लिया उन्होंने, आई फॉरगॉट द नेम, मेरे माइंड से वो निकल गया, बट मैं बताता हूँ आपको उसने किया क्या. उसने चैलेंज लिया, ही वाज अ मिलियनियर. उसने चैलेंज लिया कि मुझे रोड पे छोड़ दो एंड आई विल मेक $1 million इन अ ईयर. उसने ये किया, उसने कहा कि मैं आपको इस रोड पे खाली हाथों जीरो से मैं आपको $1 million बना के दिखाऊंगा. उसने किया कि बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल सी चीज़ है. ही वेंट टू द सोसाइटी, ही वेंट टू हिज सराउंडिंग्स, राइट. उसने लोगों से उनकी प्रॉब्लम्स पूछी एंड ही टारगेटेड द पीपल हु कैन पे गुड अमाउंट ऑफ मनी, राइट. उनकी प्रॉब्लम्स पूछी. सो प्रॉब्लम्स पूछी, उसने अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से लोगों से जो बात कर सकता था किया. उसने देखा कि जो प्रॉब्लम उसके सामने है एंड व्हाट सोल्यूशन ही कैन ब्रिंग टू द टेबल, उसने वो सोल्यूशन बनाया. उसने एक बंदे को बेचा. व्हेन ही सीज ओके यार एक बंदा तो ले चुका है, नाउ आई कैन जस्ट हैव टू स्केल इट, लाइक 2 4 5 10 15 20 हज़ार उसने बेचना शुरू कर दिया. मैंने थॉट कि जब स्केल हो रहा है और मैंने इसको एक दफ़ा बेच भी लिया है, नाउ ऑल आई हैव टू डू इज जस्ट क्राफ्ट अ स्टोरी आउट ऑफ इट. कैसे? उसने उस पूरी ये फनल को एक स्टोरी में बदल दिया, एक ब्रांड में बदल दिया. नाउ द पीपल सीज कि इफ यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ पर्सनल ब्रांड which you can relate to something, okay, I was this and now I am this just because of this, right? Now it's a story for you and for many it's an inspiration. अगर ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई ना, ये आज हमने 3 पॉइंट्स के ऊपर कवर किया. फर्स्ट इज वैल्यू, सेकंड इज सेलिंग रिपीटेडली, थर्ड इज दिस whole 3-step process which is normally people say it's called as like triple S. So selling, scaling and story. So these 3 points. So overall, if you get the idea about all those things and कैसे इन सारी चीज़ों को कवर अप करना है, I can assure you, you will be making shitload of money again. और याद रखना, इन सारी चीज़ों को करने के लिए एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मोटिवेशन. तो वो कहाँ से आएगी? ये जो बेल आइकन है ना, इसको अगर तुम प्रेस कर दोगे ना तो आने वाली वीडियो मेरी तुम्हें मोटिवेट करेगी. और वो याद रखना, सब्सक्राइब मत करना, क्योंकि अगर सब्सक्राइब कर दिया तो ये मोटिवेशन जो है वो एक्शन में बदल जाएगा, और अगर एक्शन हो गया तो फिर पैसे भी कमाओगे. अगर इतने के लिए रेडी हो तो भाई जिम्मेदारी तुम्हारी है. मिलते हैं अगली वीडियो में.